Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video in the Best of Catalogdia practice series. चलो फिर start करते हैं. Today we'll have a very amazing, beautifully crafted Venn diagram set. This is a very non-standard format with respect to the standard Venn diagrams we actually study. Right, so let's first try to solve this. First pause this video, try to solve this yourself, and then proceed on with the rest of the solution. Now let's start reading this. Now, I'll explain to you in a moment what is this diagram all about. Let's first read this, right? And why do we need to make this diagram? So there are 15 girls and some boys among the graduating students in a class, right? So let's start writing a few information. So let's say we have some boys and then we have some girls. There are 15 girls, so total count of the girls would be 15 and some boys. So we don't know what the number of boys is. So let's say that is X. Among the graduating students in a class, they are planning a get together which can either be a 1 day event or a 2 day event or a 3 day event. So पहला classification boys and girls का था. दूसरा classification उन्हीं same students का क्या है? They can be either interested in a 1 day event or a 2 day event or a 3 day event, right? So let's not rush into making the three set Venn diagram because multiple parameters है, right? So let's keep on hold. So that is the second parameter. अभी बस ये समझते हैं, ठीक है? 1 day event, 2 day event और 3 day event. Then there are 6 singers in the class, 4 of them are boys. There are 10 dancers in the class, 4 of them are girls, and no dancer in the class is a singer. So there is no overlap between dancer and singers. So यहाँ पे क्या आ गया हमारा third criteria, right? So that makes the set a little difficult. At least with respect to representation is a lot difficult. But yeah, that is the representation. There are 6 singers in the class, right? There are 6 singers in the class, out of which 4 of them are boys. So two girls क्या होंगी singers होंगी. That is the breakdown. Then there are 10 dancers in the class. We have the second category, that is dancers. And how many dancers are there? 10. 4 of them are girls. So out of that 10, 4 are girls. So remaining 6 would be boys. Now there is nothing else mentioned. It's just that dancers and singers के बीच में कोई ओवरलैप नहीं है, इंडिपेंडेंट है. सो कुछ सिंगर्स है, कुछ डांसर है. देयर वुड बी सम कैटेगरी ऑफ पीपल हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन आइदर. क्यों बोल रहा हूँ मैं ये? बिकॉज गर्ल्स का अगर नंबर नोटिस करो तो 15 है. 15 में से 2 and 4 का ही इंफॉर्मेशन है, राइट? 6 का. सो देयर वुड बी 9 गर्ल्स हु वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन आइदर. नॉट इंटरेस्टेड इन आइदर. नन वाला पार्ट है ना. नेक्स्ट बॉयज का, बिकॉज हमारा टोटल नहीं है तो हम इसका नंबर भी एक्चुअली में नहीं निकाल सकते, ठीक है? तो अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द गेट टुगेदर. तो 3 टाइप के इवेंट्स है ना, 1 डे इवेंट, 2 डे इवेंट और 3 डे इवेंट. देर आर सम स्टूडेंट्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द गेट टुगेदर. तो कोई सा भी इवेंट में इंटरेस्टेड नहीं है. देन दो स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अ 3 डे इवेंट. जो भी हमारा, लेट्स से अगर ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है 3 डे इवेंट वाला, जो भी हमारा 3 डे इवेंट में इंटरेस्टेड है, ऑल्सो इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अ 2 डे इवेंट. तो 3 डे वाले सारे के सारे 2 डे इवेंट वाले का पार्ट हैं. तो ये क्या है? एक तरीके से नेस्टेड वेन डायग्राम है, राइट? दिस इज अ नेस्टेड वेन डायग्राम. नेस्टेड का मतलब क्या होता है? एक के अंदर एक, एक के अंदर एक. सो ऑल द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अ 3 डे इवेंट आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अ 2 डे इवेंट. तो 3 वाला पूरा का पूरा 2 वाले के अंदर आएगा. नॉट द अदर वे अराउंड, बिकॉज 3 वाले सारे 2 में इंटरेस्टेड है. बट देयर कुड बी सम हु आर इंटरेस्टेड इन अ 2 डे इवेंट बट आर नॉट इंटरेस्टेड इन अ 3 डे इवेंट. ये वो बाहर वाले लोग होंगे, राइट? एंड देन दोज हु आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अ 2 डे इवेंट. तो 2 डे वाला आपका पूरा सर्कल है बाहर वाला, आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अ 1 डे इवेंट. वही सेम काम जो 2 वाला पूरा सर्कल है वो 3 वाले के अंदर आ जाएगा. सो ये वाला डायग्राम अगर नोटिस करोगे, दीज येलो सर्कल्स, सबसे अंदर वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अ, ये बाहर वाला वन, ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अ 3 डे इवेंट. उसके बाहर वाला मिडिल सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है दिस एंटायर थिंग, persons who are interested in attending a 2 day event. and सबसे बाहर वाला रिप्रेजेंट कर रहा है persons who are interested in attending a 1 day event, right? I hope the representation is clear till this point at least. नाउ दूसरा आप नोटिस करोगे, इसमें हमने कुछ लाइंस बना रखी हैं. अभी ये लाइंस किस चीज को डिनोट कर रहा है? सबसे पहले ये जो भी हमारे स्टूडेंट्स वगैरह हैं, इसमें मैंने एक मिडिल लाइन बनाई. इस मिडिल लाइन के लेट से लेफ्ट में मैंने क्या लिख दिया? बॉयज. तो ये जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है इस पूरे सर्कल का, बड़े वाले सर्कल का, वो बॉयज को रिप्रेजेंट करेगा.
और राइट हैंड साइड वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा, गर्ल्स को। देन अगेन बॉयज में भी और गर्ल्स में भी हमने फर्दर इस पूरे डायग्राम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा। वो किस लिए डिवाइड करा, फॉर दी सिंगर्स डांसर्स एंड नाइदर वाले, राइट। सो लेट्स से ये रिप्रेजेंट करते हैं सिंगर्स। तो हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं, लेट्स से ये वाला मान लो एग्जाम्पल के लिए, तो ये वो जो रीजन है, ये रीजन किसको रिप्रेजेंट करेगा, दीज आर द बॉयज हु आर सिंगर्स एंड आर इंटरेस्टेड ओनली इन अ वन डे इवेंट, क्योंकि ये सिर्फ वन डे में इंटरेस्टेड है, टू वाले तो अंदर है। बट देन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मान लो यहाँ पे कोई आया, तो उसको किस लिए बोलेंगे, ये बोलेंगे दीज आर द सिंगर बॉयज हु आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अ व्हाट, वन डे इवेंट एंड अ 2 डे इवेंट बट नॉट अ 3 डे इवेंट, क्योंकि 3 वाला अंदर आएगा। और अगर मान लो कभी रिप्रेजेंट करना हो बॉयज सिंगर्स हु आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग 3 डे इवेंट, तो वो वाला हमारा यहाँ पे अंदर आ जाएगा। क्लियर, या ऑल थ्री वैसे भी आ जाएगा, बिकॉज 3 वाला हमेशा 2 वाले में ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है, 2 वाला ऑटोमेटिकली 1 वाले में इंक्लूडेड है। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। तो सिंगर वाला इस पूरे पार्ट पे रख सकते हैं। देन ये सेकेंड पार्ट जो हमने ब्रेक करा वो किसके लिए करा, डांसर के लिए। एंड ये वाला हमारा नाइदर, मतलब जो डांसर भी नहीं है और सिंगर भी नहीं है। सेम काम हम इधर भी कर सकते हैं, गर्ल्स में भी सिंगर्स, डांसर्स एंड नाइदर वाले। एंड देन यहाँ पे लिखा था सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द गेट टुगेदर, सो देयर कुड बी सम पीपल हु आर आउटसाइड दिस होल वेन डायग्राम। ठीक है, जो किसी भी इवेंट में इंटरेस्टेड थे नहीं थे, जो ना वन डे इवेंट, ना 2 डे इवेंट, ना ही 3 डे इवेंट। अब वो देखना पड़ेगा वो बॉयज हैं या फिर गर्ल्स हैं, आई डोंट नो राइट नाउ। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर, let's start reading all the information. So all the girls and 80% of the boys are interested in attending a one day event. One day event मतलब this entire bigger circle इस डायग्राम के अंदर। So all the girls are interested in attending a one day event, तो पूरे के पूरे गर्ल्स हमारे इस डायग्राम के अंदर ही हैं। नाउ पूरे गर्ल्स हमारे कितने हैं, टोटल गर्ल्स वुड बी 15। सो टोटल गर्ल्स 15 इस डायग्राम के अंदर आए। आउट ऑफ दैट 15, बिकॉज एवरीवन इज देयर इनसाइड दिस डायग्राम, तो हमें पता है 15 अगर डायग्राम के अंदर है, सिंगर्स हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे, गर्ल सिंगर्स आर 2 and girl dancers would be 4 and girl who are neither would be 9. So 2 हमारा this plus this plus this, 4 हमारा this plus this plus this, 9 हमारा this plus this plus this बन जाएगा। But with respect to boys it is saying 80% of the boys are interested in attending a one day event। तो अगर total boys हमने x लिए थे, suppose total boys हमने अगर x लिए, तो x का 80% ही हमारा इस डायग्राम के अंदर आएगा। So अगर हमने बॉयज एक्स बोला, तो बॉयज का 80% मतलब सिर्फ 0.8x ही हमारा इस डायग्राम के अंदर आएगा। रिमेनिंग 0.2x दिस इज बॉयज ओनली, क्योंकि गर्ल्स तो सारे डायग्राम के अंदर है। ये वाले क्या है, दीज आर नॉट इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अ इवेंट, राइट, चाहे वो वन डे हो, चाहे वो 2 डे हो, चाहे वो 3 डे हो, उनको मतलब नहीं है। सो दिस इज 0.8x। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट येस वी कैन लर्न डेफिनेटली। सेकेंड, सम ऑफ द गर्ल्स आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अ वन डे इवेंट बट नॉट अ 2 डे इवेंट। तो ये क्या कह रहा है, कुछ ऐसे भी गर्ल्स हैं जो वन डे इवेंट में तो इंटरेस्टेड है बट 2 डे इवेंट में इंटरेस्टेड नहीं है। सो वो यहाँ पे आएंगे, जो वन में है बट 2 वाले से बाहर है। सो दीज 3 वैल्यूज नॉन जीरो है, मतलब सब मिला के तो जीरो ही नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ वैल्यू आने वाली है सम। ठीक है, वी कैन नॉट ब्रेक डाउन एनी वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू दिस, बट नॉट अ 2 डे इवेंट। सम ऑफ द अदर गर्ल्स आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग बोथ, कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे इस डायग्राम के अंदर भी आएंगे। ओके, third point, 70% of the boys who are interested in attending a 2 day event are neither singer nor dancers. Now, 70% of the boys, oh, by the way, this we have missed, right? 60% of the boys are interested in attending a 2 day event. Now, ये भी important था, 0.8x हमारा क्या था, टोटल बॉयज हमारा इस डायग्राम के अंदर है। फिर वो यहाँ पे ये भी बोल देता है 60% ऑफ द बॉयज आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अ 2 डे इवेंट। तो 60% ऑफ एक्स, ओरिजिनल एक्स टोटल 0.6x हमारा 2 डे इवेंट में इंटरेस्टेड है, मतलब ऑल दीज 9 वैल्यूज, ये जो हमारे 9 वैल्यूज हैं ये हमारे 2 डे इवेंट वाले हैं, इनका टोटल का एडिशन कितना हो जाएगा, 0.6x, 0.6x 2 डे इवेंट बॉयज के साइड में। ठीक है, तो अब टोटल बॉयज हमारे 0.8x थे, 0.6 हमारा इसके अंदर है। सो रिमेनिंग ये जो बाकी 3 वैल्यूज है, ऑब्वियसली उनका डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा हमारा 0.2x। दिस इज एक्चुअली 0.2x, बट अभी हम वैल्यूज अगेन नहीं निकाल सकते, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट था, दिस वुड क्रिएट अ बिग मीनिंग।
70% of the boys who are interested in attending a 2 day event, वही 60% of the boys, that is 0.6x 2 day event वाले, उसका 70% of the boys who are interested in attending a 2 day event, 70% of this, 70% of 0.6x would be 0.42x. So 0.42x boys are interested in attending a 2 day event, are neither singer nor dancers. Now ओवरऑल 0.6x हमारा ये 9 वैल्यूज का एडिशन था, राइट? इसमें से कहता है कि इसका 70% आर नाइदर सिंगर्स नॉट डांसर। तो इस डायग्राम में से नाइदर सिंगर नॉट डांसर देखोगे तो दिस एंड दिस बचेगा। तो ये दोनों मिला के, राइट, इफ आई जस्ट मार्क दिस, ये दोनों वैल्यू मिला के तुम्हारा कितना है? 0.42x है। दैट मींस ये जो चारों वैल्यूज है, आई विल नॉट राइट दिस, ये जो चारों वैल्यूज है एडजेसेंट टू ईच अदर, वो कितना हो जाएगा? 0.6x का माइनस कर दो किससे? 0.42x। सो दीज फोर वैल्यूज वुड एड अप टू अ पॉइंट, लेट्स राइट इट हियर, these four values would add up to a 0.6 minus 0.42, that is 0.18x। और 0.18x को अगर आप फ्रैक्शन में देखोगे तो कितना आ जाएगा? 18/100 या फिर 9/50x। तो ये चार वैल्यूज का एडिशन हमारा 9/50x है ना। अब यहां से सोच सकते हो कि ऑब्वियसली इन चारों का एडिशन हमारा होल नंबर आना है, तो 9/50x को होल नंबर कन्वर्ट होने के लिए ऑब्वियसली दिस x हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 50, राइट? दिस x हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 50। तो ये या तो x हमारा 50 होगा या तो 100 होगा एंड सो ऑन। नाउ कैन आई थिंक ऑफ दिस वैल्यूज? क्या हमारा x लेट्स से 100 हो सकता है? मतलब 50 से ऊपर की कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर x हमारा 100 हुआ तो 50 इंटू 2, 2 इंटू 9, 18। ये चारों वैल्यूज का एडिशन मेरा कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। कैन दिस बी इवन पॉसिबल? द आंसर इज नो। नाउ व्हाई नो? नोटिस करो, बॉयज में सिंगर्स एंड डांसर्स ओवरऑल मिला के ही 10 है, राइट? सो ये और ये पूरा इंक्लूडिंग समवन हु इज आउटसाइड, सब कुछ मिला के हमारा, अगर सिंगर और डांसर है, बॉय है, तो 10 है। तो ये चारों वैल्यू मिला के, जिसको हम कह रहे थे कि 9/50 ऑफ एक्स है, अगर एक्स हमने 100 रखा तो ये चारों वैल्यू मिला के 18 हो जाएगा ना। दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज टोटल नंबर ऑफ डांसर्स एंड सिंगर्स इन द बॉयज इज ओवरऑल 10। तो 10 के ऊपर कैसे जा सकता है, राइट? सो इसलिए x की वैल्यू हमारी 100 है, उससे ऊपर नहीं जा सकती। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50। x हैज टू बी 50। सो 9/50 इंटू 50, ये हमारा क्या आ जाएगा? ये चारों वैल्यूज का एडिशन सिंपली 9। क्लियर? ये चारों वैल्यूज हमारा क्या आ जाएगा? 9। एंड कीप दिस इन योर हैंड, x इज इक्वल टू 50। तो काफी सारी वैल्यूज हमारी आ जाएगी, 0.8x इंटू 50, ठीक है? वो सब कुछ इससे ही निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो x इज एक्चुअली इक्वल टू 50। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। Next, 60% of the girls who are interested in attending a 2 day event are neither singer nor dancer. 60% of the girls who are interested in attending a 2 day event. तो 60% of the girls who are interested in attending a 2 day event, ये जो अगेन 9 वैल्यूज है, राइट, उसका 60%, 60% of the girls who are interested in attending a 2 day event, girls interested in attending a 2 day event is this 9 values, उसका 60% क्या है? नाइदर सिंगर नॉट डांसर। तो इन 9 वैल्यूज में से 60% कहाँ है? नाइदर में है। बचा हुआ 40% कहाँ होगा? सिंगर एंड डांसर में। तो 40:60, 2:3 का रेशो चलेगा इसका। Clear? We'll come back to this later, but that is the meaning it is trying to convey. Fourth, no girl is interested in attending a 3 day event. Now, कोई भी गर्ल ऐसी नहीं है जो 3 day event में इंटरेस्टेड है। So, girls 3 day event, right? Girls 3 day event. Let's use a different color. Girls 3 day event में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो 3 day event गर्ल्स 0, 0 एंड 0, क्योंकि ये 3 day event, तो ये 0, 0, 0 हो गया। Then all male singers and 2 of the dancers are interested in attending a 3 day event. So all male singers 4 are interested in attending a 3 day event. तो ये चार पूरा का पूरा हमारा जो सिंगर है ये 3 day event में आ जाएगा, ये 4 हो गया। एंड 2 of the dancers are also interested in attending a 3 day event। कौन? मेल वाले जो डांसर है। तो मेल डांसर हमारे पास कितने थे? 6 थे, उनमें से 2 हमारा 3 day event में ही इंटरेस्टेड है, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। नाउ इसके थ्रू अब एक चीज नोटिस करना, बॉय में सिंगर तो तुम्हारे कुल मिला के कितने थे? 4 ही थे।
वो 4 पूरा का पूरा आ गया, मतलब ये 0 हो जाएगा, ये 0 कोई नहीं आ सकता। ऑल्सो नोटिस थोड़ी देर पहले हमने क्या बोला था, इन 4 नंबर का एडिशन हमारा कितना आएगा, 9 आएगा। यही था हमारा 0.18x, एक्स की वैल्यू 50, 0.18 इंटू 50 दैट इज 9। ये 4 वैल्यूज 9 4 5 6, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3। नाउ एक चीज ये नोटिस करना, यहाँ पे तुरंत से 1 नहीं लिखोगे। क्यों 1 मैं मना कर रहा हूँ, बिकॉज डांसर्स बॉयज में 6 है। अब तुम ये नहीं बोल सकते कि पूरे के पूरे डांसर हमारे यहीं पे है, क्योंकि ये बाहर भी हमारे पास कुछ बॉयज है, तो हो सकता है इसमें भी हमारे पास, और ये कितना है 0.2 इंटू 50, मतलब 10 बॉयज ऐसे हैं जो किसी भी इवेंट में इंटरेस्टेड नहीं थे, बट वो हमारे डांसर तो हो ही सकते हैं, सिंगर नहीं हो सकते, बिकॉज सिंगर यहाँ पे पूरा आ गया था। बट ये वाले 10 में भी कुछ हमारे डांसर आ सकते हैं। तो रिमेनिंग जो हमारा 6 - 5 1 डांसर है, वो हो सकता है यहाँ पे आ जाए, हो सकता है वो यहाँ पे भी आ जाए। सो इसलिए हम उसको यूनिकली नहीं लिख सकते, राइट। सो ये वाला हमारा पूरा ब्रेक हो गया। Then the number of singers interested in attending a 2-day event is one more than the number of dancers interested in attending a 2-day event. Now इसको resolve करने की कोशिश करते हैं. Let's try this. Number of singers interested in attending a 2-day event. Singers 2-day event boys plus girls मिला के, तो ये 3 वैल्यूज तो पता है, ये नहीं पता. So let's say अगर ये A है, so number of singers interested in attending a 2-day event is one more than the number of dancers interested in attending a 2-day event. Dancers 2-day इवेंट कौन सा हो जाएगा, दिस एंड दिस। तो सपोज इसको मैं अभी बी लिख लेता हूँ, तो फिर वो इक्वेशन बना लेते हैं जैसे उसने बोला है, राइट। लेट्स ट्राई टू मेक दिस इक्वेशन। हाँ बनाए, चलो थोड़ा पार्ट ये डिलीट करा जाए। लेट्स डिलीट दिस। एक्स की वैल्यू हमारी 50 है, ठीक है। ओके, सो नंबर ऑफ सिंगर्स इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अ 2-day इवेंट, सिंगर्स 2-day इवेंट, तो कितना हो जाएगा ये मिला के 4 + 1। दिस इज one more than the number of dancers interested in attending a 2-day event. Dancers 2-day event. Now dancers 2-day event 3 + 2 + b + 0, तो ये कितना हो जाएगा 5 + b, 5 + b। तो इसके थ्रू हम क्या बोल सकते हैं, ये 5 + 1 6, 6 - 4 is 2, so a is actually equal to 2 + b, a is actually equal to 2 + b। अब हम यहाँ पे क्या वैल्यूज प्लग इन कर सकते हैं ये सोचना पड़ेगा। नाउ क्या हो सकता है, ए तुम नोटिस करो। नाउ दिस विल बी वेरी सिंपल, बिकॉज ए हमारा 2 + समथिंग है ना, सो ए मेरा मिनिमम 2 तो बनेगा, बिकॉज बी नेगेटिव तो जा नहीं सकता। ए मेरा मिनिमम क्या बनना पड़ेगा 2। नाउ नोटिस करो गर्ल्स में सिंगर ओवरऑल ही हमारे पास कितना है 2 है, तो ए मिनिमम 2 होगा और मैक्सिमम भी 2 ही जा सकता है। सो डेफिनेटली ए मेरा क्या चला जाएगा 2 चला जाएगा। सो ये 2 चला जाएगा, तो बी कितना आ जाएगा तुम्हारा 0। और बिकॉज ये 2 and 0 हो गया, सिंगर्स कंप्लीट हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। बट डांसर्स हमारे 4 थे गर्ल्स में, 0 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा 4। नाइदर में अभी फिलहाल हमारा ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, ठीक है। बट दिस स्टेटमेंट इज नाउ यूज्ड। अब ये वाला ब्रेक डाउन करने के लिए नोटिस करो ये नंबर कैसे मिलेगा। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था ये वाला पार्ट, 60% of the girls who are interested in attending a 2-day event are neither singer nor dancers। तो 2-day event गर्ल्स में ये पूरा है, इसका 60% यहाँ है, 40% ये होगा। 40 = 60 = 2 = 3। वो 2 हमारा कितने के बराबर है 2 0 0 0 2 के बराबर ही है। तो यहाँ पे 2 है तो ये 3 होना चाहिए, तो ये 0 है तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 3, एंड बिकॉज ये 3 है तो ये नंबर क्या आ जाएगा तुम्हारा 6। क्लियर। एंड नाउ एवरीथिंग इज ब्रोकन डाउन। ये सब कुछ अभी फिलहाल हम यूनिक नहीं निकाल सकते। नाउ वी कैन एक्चुअली गो टू द प्रॉब्लम्स और वहां से देखते हैं क्या हमें फर्दर और कुछ निकालने की जरूरत है, राइट। डू वी हैव मिस्ड आउट एनीथिंग, वो क्वेश्चंस के थ्रू अपने को आइडिया लग जाएगा। लेट्स गो टू द प्रॉब्लम्स वन बाय वन। फर्स्ट, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास, वो हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारा टोटल बॉयज कितना था x था, तो x की वैल्यू हमने कितनी बोली 50। Which of the following can be determined from the information? पहला, the number of boys who are interested in attending a 1-day event are neither dancers nor singers. Boys 1-day event, neither singer nor dancer, right? क्या हम इन तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं? Can we figure out this? नाउ ये नंबर हम फिगर आउट कर ही नहीं सकते, बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करा था कि यहाँ पे ये जो नंबर है, ठीक है, ये वाला नंबर, ये 1 नहीं है, जरूरी नहीं है।
अगर ये पता चल गया होता तो ये हम तीनों का सम निकाल सकते थे, बिकॉज बॉयज में बाहर मुझे पता है कितना है, ठीक है, बॉय बाहर मेरा 10 है। सो ऑब्वियसली अगर टोटल बॉयज हमारे 50 हैं तो अंदर हमारे बॉयज 40 हैं। अभी अगर ये नंबर 1 होता तो मैं बता सकता था माइनस करके ये नंबर कितना आएगा, बट ऐसे हम इसको यूनिकली नहीं बता सकते। सो द नंबर ऑफ बॉयज हु आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अ वन डे इवेंट एंड आर नाइदर डांसर नॉर सिंगर, ये वाला ये हम यूनिकली नहीं बता सकते, तो 1 तो नहीं होगा। ठीक है। ये वाला ऑप्शन बाय द वे ओनली 1 है। ठीक है। सो ये तो नहीं हुआ। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड वाला चेक करते हैं, द नंबर ऑफ फीमेल। फीमेल के लिए तो आप हर चीज़ यूनिकली बता ही सकते हो। द नंबर ऑफ फीमेल डांसर्स इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अ वन डे इवेंट, सब बता सकते हैं। फीमेल डांसर्स वन डे इवेंट, सो ये यूनिकली हम बता सकते हैं वन डे इवेंट वाला। ठीक है। सो ओनली क्या हो जाएगा तुम्हारा 2। थर्ड, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्लास आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अ 2 डे इवेंट, और ये हम बता सकते हैं बिकॉज ये मुझे पता था। टोटल हमारा 2 डे इवेंट बॉयज में ये था, है ना, कितना था, 0.6x था, राइट। 2 डे इवेंट हमारा बॉयज में कितना था, 0.6x। तो एक्स की वैल्यू हमारे 50 थी, तो ये बॉयज में 2 डे इवेंट वाला कितना हो जाएगा, 30। ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्लास, और क्लास में टोटल हमारे पास कितने बच्चे हैं वो भी देख लो। 50 हमारे पास बॉयज हैं। ठीक है। बॉयज हमारे पास टोटल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 50। सो 50 + 15 कितना हो जाएगा, 65। नाउ गर्ल्स 2 डे इवेंट वाला निकाल लो। गर्ल्स 2 डे इवेंट ये पूरी वैल्यू है, सो 2 ये है, और ये तुम्हारे पास कितनी है, 3। सो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। 35/65, 5 7 7/13, राइट। सो दिस इज 7/13। Fourth, what best can be concluded about the number of male dancers interested in attending a one day event? मेल डांसर्स वन डे इवेंट, वही बात है, अब मेल डांसर्स वन डे इवेंट इसकी वैल्यू पूछ रहा है। सो अगर यहाँ 0 हुआ फॉर एग्जांपल और बाहर वो 1 चला गया तो 5 होगा, अगर वो 1 यहाँ आ गया तो 6 हो जाएगा। सो इट हैज टू बी आइदर 5 और 6, ए ऑप्शन। हाउ मेनी फीमेल डांसर्स इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अ 2 डे इवेंट, फीमेल डांसर्स 2 डे इवेंट, फीमेल डांसर्स 2 डे इवेंट, राइट, कोई भी नहीं है। 2 डे इवेंट में 0 + 0, so it has to be 0, right? So a very complicated set with respect to the representation, but you have to make sure you learn this thoroughly, right? How to represent this, and then using all the information we can actually break down whatever is given, right? So I hope you have understood this. If you have any doubts you can just put down in the comments. Thank you.